પાટીદાર પ્રીમિયર લીગ સિઝન 1 2024 નો આ બીજો દિવસ 8 મેચો વચ્ચે 8 ટીમો વચ્ચે 12 લીગ મેચ દરમિયાન રસ્સાકસીનો મુકાબલો, ત્યારબાદ 4 સેમીફાઇનલિસ્ટ અને તેનામાંથી 2 બેસ્ટ ટીમ અહીંયા ફાઇનલમાં આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત, ભિવંડી 11 અને થાણે પાટીદાર 11. જે રોમાંચભર્યા મુકાબલાની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેનો સમય આવી ગયો. ભિવંડીના 2 સલામી બેટ્સમેન ક્રીઝ ઉપર આવતા, થાણાના બંને બેટ્સમેન રિતેશભાઈ સેંગાણી અને હાર્દિકભાઈ માવાણી. ભિવંડીના આઇકોનિક બોલર પોતાના ઓપનિંગ સ્પિનને લઈને પ્રકાશભાઈ રામાણી, શોર્ટ રનઅપ, સ્ટ્રાઇક પર હાર્દિક. રસ્સાકસીનો મુકાબલો, બંને ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં ફાઇનલમાં આમને સામને. બેટ્સમેન રેડી, ફિલ્ડર્સ રેડી, અમ્પાયર્સ રેડી, પ્લે. પહેલો બોલ આઉટસાઇડ ધી ઓફ સ્ટમ્પ કટ કરી ચૂક્યો છે. પહેલા જ બોલે 4, ચોક્કો. ખૂબ સરસ શરૂઆત થાણા પાટીદાર દ્વારા. હાર્દિકના બેટથી નીકળતો પહેલો ઓફસાઇડ પર લાગનારો ચોક્કો. મ્યુઝિક પ્લીઝ. एक रन. स्कोर 5 रन. ऑफ साइड पर कट शॉट, इनफील्ड ना बारे, 4 रन. પ્રકાશભાઈ ચોથો બોલ લઈને આવી રહ્યા છે. લો ફૂલ ટોસ ઉપાડી દીધો છે. 1 બાઉન્સ 4. આ ઓવરની લાસ્ટ બોલ. 4 બોલ થયા. સોરી 4 બોલ. રન આઉટ નો ચાન્સ. નોટ આઉટ. અહીંયા એક્યુરેટ થ્રોની જરૂરત હતી. કીપરથી ખૂબ દૂર હતો બોલ, પણ સારો કલેક્ટ કર્યો. ત્યાર સુધી બેટ્સમેન ક્રીઝની અંદર. 1 રન. સ્કોર આગળ વધતો 14 રન.
પાટીદાર પ્રીમિયર લીગ સિઝન 1 2024 ફાઇનલ ભિવંડી 11 અને થાણે પાટીદાર 11 વચ્ચે. લાસ્ટ બોલ આ ઓવરનો. બોલર પ્રકાશ. સારો બોલ નાખ્યો છે. સિંગલ. એક ઓવર 15 રન, નો લોસ, થાણે પાટીદાર. બોલિંગ પાવર પ્લેનો ઇશારો. બોલર હિતેશભાઈ હાથ ઉપર કરજો. થેન્ક યુ. સ્ટ્રાઇક પર હાર્દિક. બોલિંગ પાવર પ્લે ભિવંડીએ સિલેક્ટ કર્યો છે. વાઇડ. બોલિંગ પાવર પ્લેમાં 38 સર્કલના બારે 3 ફિલ્ડર અલાઉડ. કટ કરી દીધો પોઈન્ટ પર, એક સિંગલ. સ્કોર આગળ વધતો 17 રન 17-17. ભિવંડીના ટીમનો ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો છે. ઓ આઉટસાઇડ ધી ઓફ સ્ટમ્પ. બીટ થયા કમ્પ્લીટલી બેટ્સમેન. બોલ સીધો કીપર પાસે. ભિવંડીના કીપર ઇન્દ્રવર્ધન ક્લોઝ કીપિંગ કરી રહ્યા છે, જેથી બેટ્સમેનને ક્રીઝ છોડતા ડર લાગે. પોઈન્ટ પર મારી દીધો છે, ઇનટુ ધ ગેપ. કવર્સ પર બોલ દોડતો 4 રન. પરફેક્ટ. થાણે પાટીદારે પોતાના રનની ગતિને મેન્ટેન કર્યું છે, પણ તેમને એક્સિલેટર પર પગ મૂકવો પડશે. કવર્સ પર ફરાવી મારી દીધો. લોંગ ઓન ઉપર ફિલ્ડર મોજૂદ. એક સિંગલ રન. સ્કોર આગળ વધતો 22 રન 22. और एक कट किया है, रन आउट हो सकता था, पर बैट्समैन ने ફૂર્તિ દિખાઈ. एक ही रन. શું લાગે છે જયભાઈ, ફાઇનલ માટે કેટલો સ્કોર રેસ્પેક્ટેબલ છે? બંને ટીમ સારી છે, બંનેની બોલિંગ પણ સારી છે. ફરીથી એક સિંગલ. ઓવર કમ્પ્લીટ. સ્કોર છે 2 ઓવર 24 રન, નો લોસ. प्रकाश भाई अपना कोटे का सेकंड ओवर लेते आ रहे हैं. लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स उड़ा दिया है, फील्डर उनके नीचे नहीं पहुंच पाएंगे
और 6। ये इनिंग का पहला छक्का। थे आज थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। कट करना चाहते थे बैट्समैन, बाउंस ने उनको बीट किया। डॉट बॉल। रितेश भाई जो 21 पर खेल रहे हैं 9 बॉल पर, काफी अच्छे लय में है। थाने पाटीदार के स्टार ओपनर प्रकाश भाई। ब्लॉक हॉल में बॉल, सम्मान दिया प्रकाश भाई को रितेश भाई ने। काफी अच्छी बॉलिंग, गुड कमबैक। कट करना चाहते थे, फिर से बीट किए प्रकाश भाई अपनी लय दिखाते हुए। મારા ખ્યાલથી ઇન્દ્રવર્ધન ભાઈએ પ્રકાશભાઈને કાનમાં કંઈક કીધું જેનાથી તેમને એમની લાઈન ચેન્જ કરી દીધી। लाइन को थोड़ा पीछे खींच के रखा हुआ है। लॉफ्टेड ફૂલ बॉल, ટોસ फुल टॉस, લેગ સાઈડ પર। 6। આવા જ્યુસી બોલ મળે તો સીમા રેખાના પાર જ જાય। ત્રીજી ઓવરનો છેલ્લો બોલ। સ્લોઅર ડિલિવરી, લેગ સાઈડ પર ટ્રેક કરી લીધો, ફિલ્ડર મौजूद, એક સિંગલ રન। ओवर कंप्लीट। 3 ओवर 37 फॉर नो लॉस थाने पाटीदार। नए बॉलर वैभव दीवानी, कल्याण नगरी एंड से। 6.5 फीट का कद और पेस गोली जैसी। फुल टॉस घुमा दिया है, डीप स्क्वायर लेग पे, कोई प्लेयर नहीं है वहां पे। 1 बाउंस। रितेश सिंगानी जो स्ट्राइकर पर खेल रहे हैं, 15 बॉल पर 32 रन पर निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। तीसरा बॉल पुल करना चाहते थे, बैट पर आई नहीं। बैट्समैन 1 रन से संतुष्ट। કોન સમાજના પ્રમુખ શ્રી પ્રભુદાસભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે અહીંયા મંચ પર આવે, તેમજ શાહડ સમાજના મહામંત્રી શ્રી છગનભાઈ, તેમને પણ વિનંતી કરીશ કે અહીંયા મંચ પર ઉપસ્થિત થાય ને મંચની શોભા વધારે। प्ले एंड मिस, पेस से बीट किया बैट्समैन को वैभव ने।
चौथा बॉल लेकर आ रहे हैं। बैट्समैन ने लेग साइड पर ट्राई किया मारना, 2 रन के लिए निकल पड़े हैं। फील्डर से थोड़ा फंबल होते हुए 2 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, वैभव। शॉट ऑफ द लेंथ, अंपायर ने वाइड करार करते हुए, वाइड ऑफ साइड से ज्यादा ही बाहर चली गई। स्कोर पहुंचा 45, नो लॉस। लेंथ बॉल घुमा दिया है सीधा लॉन्ग ऑन रीजन पर, 4, 1 बाउंस 4। बाद 49 पर कोई नुकसान नहीं। પાટીદાર પ્રીમિયર લીગ સીઝન 1 2024 ના દાતાશ્રી મેન ઓફ ધ મેચ પેલી તેના દાતા અશોક નારાયણ લીંબાણી, મેન ઓફ ધ મેચ સેમીફાઇનલ બીજી રાજેશ મનસુખ પાચાણી, મેન ઓફ ધ મેચ ફાઇનલના દાતાશ્રી મણિલાલ વાલજી લીંબાણી, બેસ્ટ બેટ્સમેનના દાતા કાંતિલાલ હરજી તોળુ, બેસ્ટ બોલરના દાતા છાપૈયા બોયઝ, બેસ્ટ ફિલ્ડરના દાતા ભીવંડી યુવા મંડળના હસ્તેથી ઘનશ્યામભાઈ, મેન ઓફ ધ સિરીઝના દાતા રતનસિંહ કરસન દિવાણી, રનર્સ અપ કપના દાતા ક્રિએટિવ ગ્રુપ અને વિનર્સ કપના દાતા આનંદ ગોલ્ડ. ફરી પાછો આ બધા દાતાશ્રીઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ આભાર. न्यू बॉलर नीरव, रितेश सेंगानी 33 नॉट आउट पर खेल रहे हैं और हार्दिक का स्कोर है 14। जो हिसाब से रन रेट मेंटेन किया हुआ है 100 तक पहुंचेंगे, 100 तक ये पहुंच जाएंगे। अब देखना है भिवंडी इनको रोक पाती या नहीं। शॉर्ट बॉल पेस से बीट किया बैट्समैन को। बहुत ही नपीतुलिंग बॉलिंग का नज़ारा दिखाना पड़ेगा भिवंडी को। ये लाइन टेस्ट मैच वाली लाइन थी। अगली बॉल, सेम शॉट, फील्डर नीचे, काफी अच्छा कैच, काफी अच्छा कैच, काफी लो कैच, अच्छे से लपका मिड विकेट रीजन पे। मान लो भिवंडी की टीम में फिर से जान फूंक दी। अभी बल्लेबाजी का जिम्मेदारी संभालने के लिए आए हैं तेजस सेठिया। थाने पाटीदार के काफी जाने माने बैट्समैन।
मिड डे टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं, अपनी टीम के लिए क्या जलवा दिखाएंगे। स्टार बैट्समैन है थाने पाटीदार के वो। बाज की नजर से फील्ड का निरीक्षण किया। विराट कोहली है वो, वन डाउन की पोजीशन पे ही आते हैं। फुल बॉल, डॉट बॉल, रिस्पेक्ट देते हुए बॉलर को। शॉर्ट ऑफ द लेंथ, पॉइंट के रीजन पर कट किया था बैट्समैन ने, सिंगल चुरा लिया। इसी के साथ तेजस सेठिया ने अपना खाता खोला। स्कोर पहुंचा है 50 फॉर 1। ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ रीजन पे, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, खतरा हो सकता है। बॉल कलेक्ट नहीं कर पाए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट तेजस के द्वारा और हार्दिक के द्वारा। अगली गेंद, काफी बाहर, अंपायर ने दोनों हाथ फैला दिए, वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद। ये विकेट कीपर बोल रहे हैं 3 नंबर डालो, 3 नंबर डालो, 2 नंबर डालो। स्लो बॉल डाली, काफी अच्छा बॉल, डॉट। हार्दिक समझ ही नहीं पाए बॉल को। ये था इंद्रवर्धन जी की कोडेड लैंग्वेज अभी धीरे धीरे हमें भी समझ में आ रही है। 3 नंबर यानी स्लोवर बॉल। अगले साल लगता है इनको फिर से अपनी कोडिंग सिस्टम बदलनी पड़ेगी। काफी अच्छे एक्टिव कैप्टन है वो। थाने पाटीदार के बैट्समैन ने बैटिंग पावर प्ले लेने का निर्णय किया है। केवल 3 क्षेत्र रक्षक अंदरूनी दायरे के बाहर खड़े रह सकते हैं। वैभव कंटिन्यू करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। अच्छा रनअप है। स्कोर हुआ 5 ओवर 53 फॉर 1 थाने पाटीदार। शॉर्ट बॉल डाली है, घुमा दिया है बैट्समैन ने, फील्डर नीचे और आउट। यश दीवानी के द्वारा काफी अच्छा कैच। यश दीवानी लगता है हाथ में फेविक्विक लगा के आए हैं। जो भी बॉल उनके पास आया सब लपक ली उन्होंने। फिर से भिवंडी के टीम में एक उत्साह। ये रणनीति जो बनाते हैं इंद्रवर्धन, रिजल्ट भी उसका अच्छा ही हो रहा है। पहले 4 ओवर में रनों की गति काफी दूसरे स्टार खिलाड़ी आए दिलीप भाई। फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन, बॉलर को कोई अलग रणनीति अपना रहे हैं। मुंबई कच्छ कड़वा पाटीदार मिड डे टीम के कप्तान
दिलीप भाई, सीधा बॉल ब्लॉक होल में, काफी अच्छी डिलीवरी, ये बहुत बढ़िया तरीके से दिलीप भाई का स्वागत किया बॉलर ने। पेस, वैभव जाने जाते हैं अपने पेस से। ऐसे एक्यूरेट बॉलिंग की सख्त जरूरत थी भिवंडी को। मारना चाहते थे, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा, केवल 1 रन। कैप्टन उर्फ विकेट कीपर कुछ मंत्र कह रहे हैं उनसे। बड़े लक्ष्य को खड़ा करना है तो रनों की गति बढ़ाने की सख्त जरूरत थाने पाटीदार को। बांध के रखा है भिवंडी के बॉलर्स ने। स्लोअर डिलीवरी, सीधा बॉलर के हाथ में, बढ़िया गेंद। काफी अच्छा मिश्रण कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में, कभी लेंथ पीछे रखते हैं, कभी फुल बॉल दे रहे हैं, कभी शॉर्ट पिच इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरिएशन से बैट्समैन को कंफ्यूजन। डाउन द लेग, इस बार दिशा चूके, लेग साइड पे ज्यादा ड्रिफ्ट कर गई बॉल। अंपायर का वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी और एक अतिरिक्त रन थाना पाटीदार। स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अपने रनअप को चूके बॉलर। छठे ओवर की 2 गेंदें शेष है। अपील किया हुआ है, बहुत ही बड़ा अपील। ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर बैट्समैन ने गेंद लेग के रीजन में मारने की कोशिश। डॉट बॉल, बैट से संपर्क नहीं, डॉट बॉल। छठे ओवर की आखिरी गेंद। प्रेशर हार्दिक के ऊपर। कवर्स पे से बॉल निकाल दिए, क्षेत्र रक्षक अंदर थे, देखते हैं फील्डर पहुंच पाते कि नहीं बाउंड्री बाहर की तरफ। काफी अच्छी मेहनत की वहां पे। अंपायर्स के सिग्नल का राह देखना पड़ेगा हमें। फील्डर ऋषि 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 6 ओवर 57 फॉर 2। एनर्जी देख रहे हो कमलेश भाई? यस। ग्राउंड शॉट, स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑफ रीजन, 1 रन। अगर कैप्टन इतना एक्टिव हो तो पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। और पानी पिलाने वाले लखन भैया हो तो सब में एनर्जी भी बढ़ जाती है। फुल टॉस घुमा दिया है, फील्डर मौजूद, ओ कैच मिस्ड और बॉल सीमा रेखा के बाहर, हाथों के बीच में से
देखते हैं ये कैच मिस करना कितना भारी पड़ रहा है। जो फील्डर अब तक 2 कैच लपक चुके थे उन्हीं के हाथ के बीच में से बॉल निकलती हुई। फिर से बल्ला घुमा दिया, लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद, बैट्समैन 1 रन चुराने में कामयाब। 7वीं ओवर प्रगति पे। 1 रन से खुश होगा भिवंडी। 1 रन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छक्के और चौके नहीं जाने चाहिए। स्कोर 65 रन। शॉर्ट ऑफ द लेंथ, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग। काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए भिवंडी के यंगस्टर्स। ऋषि ऋषि लिंबाणी भिवंडी के युवा खिलाड़ी। फील्ड में थोड़ी तब्दीली। पटकी हुई गेंद बैट्समैन ने घुमा दिया है, टॉपेज लगकर बॉल सीमा रेखा के पार। यह ऐसी जगह होती है जहां पे कोई फील्डर नहीं होता। सत्तर रन। काफी तेज हवा चलती हुई मैदान में। डाउन द लेग, वाइट। लाइन चूके। स्कोर बढ़ता हुआ 71। काफी प्रेशर दोनों बैट्समैन और बॉलर पे भी। फुल बॉल मिस, पेस से बीट किया बैट्समैन को। आप नीरव देख ने। सकते हो अच्छा प्रदर्शन दोनों को ही दिखाना है अपने टीम के लिए। एक स्कोर बड़ा हुआ, स्कोर खड़ा करना है। स्कोर हुआ है 7 ओवर के बाद 71 फॉर 2। यहाँ पे बैट्समैन थोड़ा बैट चेंज करना चाहते हैं। या फिर कुछ मैसेज है उनके लिए ड्रेसिंग रूम से। नहीं है मैसेज। मंगूस बैट लिया है शायद। ના ભાઈ મંત્રેલી બેટ છે, જોઈએ કેટલા છક્કા ચોકા લાગે છે। અંકિતભાઈ અમારા સાથી કોમેન્ટેટર, તેમને નિવેદન કે અહીંયા કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે ઝડપથી આવી જાય। लेग बाय का इशारा अंपायर का। स्कोर बढ़ते हुए 72 फॉर 2। फुल बॉल थी, फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन। અંકિતભાઈ બાદાણી, અંકિતભાઈ ભાવાણી સોરી, બદલાપુર આવી ગયા। फुल बॉल लॉन्ग ऑफ के 1 रन। આગળની કોમેન્ટ્રી અંકિતભાઈ કરશે।
इस फाइनल की पहली इनिंग की आखिरी ओवर। उठा के मारा है फील्डर उसके नीचे आते हुए, लेकिन गेंद फील्डर तक पहुंचे तब तक पीछे से आकर युवा खिलाड़ी ने फील्ड किया इस गेंद को। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे थाने पाटीदार को। इस बीच इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 75। पीछे एक बार तैयार दिलीप। लोअर फुल टॉस थी, फील्डर नीचे है, देखना बाकी। हालांकि जज नहीं कर पाए नीरव और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, लगता हुआ पाटीदार चौका। चौको खुश दिखते हुए नीरव के ऊपर, लेकिन देखना बाकी आगे क्या कर सकते, अपने टीम के लिए निकल पड़े। सामने का दिलीप उठा के खेला है फिर से एक बार। अब अपने कॉलर थ्रू में कोई गलती नहीं करेंगे और एक विकेट बड़ी मछली जाल में फंसा लिए। इस बीच कप्तान दिलीप आउट होकर मायूस कदमों के साथ वापस जाते हुए। बजाओ डीजे। आखिरी गेंद खेलने के लिए थाने पाटीदार के रौनक भीमानी यानी कि रोनी रत्नापर मऊ से बिलोंग करते। देखना बाकी अपने टीम के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हितेश निकल पड़े, बढ़िया गेंद थी, समझ नहीं पाए वहां पर पहाड़ जैसे पीछे खड़े कीपर इंद्रवर्धन। 1 रन से बाय के जरिए आते हुए इस बीच 1 रन के साथ थाने पाटीदार का स्कोर जा पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन बने। 81 रन का लक्ष्यांक रखा है जीतने के लिए भिवंडी बॉयज को।
नीरव और प्रकाश। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मेरे ख्याल से प्रकाश हो तो अपना बल्ला ऊपर करे, धन्यवाद प्रकाश भाई। और नॉन स्ट्राइक एंड पर मेरे ख्याल से रहेंगे नीरव, सॉरी स्ट्राइक पर नीरव रहेंगे। हल्की सी दिक्कत हो रही है लेकिन अंपायर को निवेदन करूंगा जल्द से जल्द फाइनल का दूसरा इनिंग स्टार्ट करवाए। स्ट्राइक पर नीरव हो तो अपना बल्ला ऊपर करे, धन्यवाद नीरव। नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रकाश भाई हो तो अपना बल्ला ऊपर करे, धन्यवाद प्रकाश भाई। और स्ट्राइकर बॉलर है थाने पाटीदार के अनिल भाई, अनिल भाई हो तो अपना हाथ ऊपर करे। दोनों हाथ हवा में लहरा दिया अनिल भाई ने। मेगा फाइनल का दूसरा इनिंग का पहली गेंद, काउंटडाउन चालू, 4 5 3 2 1 गो स्टार्ट। हल्के हाथों से खेला नीरव ने, कवर रीजन में वहां पर तेज सेठिया फील्ड करते, तब तक नीरज सेठिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला, इस बीच खाता खोला नीरव ने और टीम का और खुद का। अब आ चुके हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रकाश। कद छोटा है लेकिन काम बहुत बढ़िया करते हैं प्रकाश अपने टीम के लिए। एक छोड़ संभाल के रखते हैं, सामने कुछ भी होने दें लेकिन एक छोड़ बखूबी काम निभाते अपने टीम के लिए प्रकाश। आज इस फाइनल के मैच में क्या कर सकते हैं वो तो आने वाला टाइम बताएगा। और प्रकाश भाई स्ट्राइक पर, अनिल भाई निकल चुके हैं। हल्के हाथों से फिर से कवर रीजन में खेल दिया है। अब गेंद तेजस सेठिया के हाथ में, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता खोला और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। हालांकि जानते हैं दोनों ही बल्लेबाज लक्ष्यांक नामुमकिन जैसा तो नहीं है, ऐसे ही अगर क्रीज के ऊपर खड़े रहेंगे तो निश्चित तौर से स्कोर तक जा सकते हैं। लेग स्टंप पर गेंद थी, उसको हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन हल्की सी आवाज आई थी, लेकिन उस अपील के ऊपर अंपायर का कोई प्रभाव नहीं। ये अंपायर डॉट गेंद। पहली ओवर का खेल प्रगति पर। नीरव सामना करेंगे अनिल का। दोनों खिलाड़ी के बीच में से चीरती हुई गेंद कारपेट के जरिए कवर रीजन में जाती हुई ये लगता हुआ पाटीदार चौका, चौको। अनिल भाई सामना करेंगे नीरव। लेग स्टंप पर गेंद दी, उसको हल्के हाथों से खेल दिया। वहां पर थर्ड मैन के फील्डर मौजूद, फील्ड करते तब तक
एक रन चुरा लिया। यहां पर हे प्रभु, हे जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? यहां पर अनिल भाई को ये बड़ी मछली जाल में फंसी थी, लेकिन दिलीप भाई कैच नहीं लग पक पाए। इस बीच लकी चाम प्रकाश को जीवनदान मिला है। भिवंडी के सलामी बल्लेबाज प्रकाश, देखना बाकी जीवनदान के ऊपर कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं या नहीं। दिलीप, इस बीच एक ओवर की समाप्ति के बाद भिवंडी बॉयज का स्कोर है 8 रन। अब स्ट्राइक पर है प्रकाश। हल्की सी फील्ड खुल चुकी है और अब प्रकाश को जीवनदान भी मिला है। देखना बाकी कितने फायदेमंद हो सकते हैं। कवर रीजन में खेल दिया, वहां पर फील्डर बाउंड्री लाइन से आकर फील्ड करते, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चोट बदला। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा भिवंडी बॉयज का 9 रन। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर। दिलीप कप्तान पेंट गब्बर बॉलिंग कर रहे हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं नीरव पोकार। उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। नीरव फिर से एक बार तैयार, सामना करेंगे दिलीप की गेंद का। लेग स्टंप पर गेंद थी, उसको उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन पैड पर जाकर लगी। लेकिन अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। नीरव लगातार 2 गेंदें डॉट करने के बाद फिर से एक बार तैयार, उठा के मारा है स्लिप में। वहां पर रितेश खड़े हैं, लेकिन वहां पर सेठिया बंधु ने गेंद को लपका। 1 रन से स्ट्राइक चेंज करते हुए नीरव। अब आ चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर प्रकाश। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन जारी इस बीच मैदान के ऊपर। हल्की सी अपील हुई थी स्टंपिंग की, लेकिन लेग अंपायर के ऊपर उस अपील का कोई दबाव नहीं, नकारा इस अपील को। अपील के साथ दोनों ही बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है थाने पाटीदार। पूरी तरीके से दबा के रखा है भिवंडी बॉयज को। हालांकि कोई विकेट अब तक गिरी नहीं है, लेकिन रन भी नहीं बने हैं। दूसरी ओवर का खेल प्रगति पर है और 10 रन बने हैं। वहां पर फील्डर नीचे आते हुए इस बार भी कैच छूटा, और वो भी किसका? प्रकाश का दूसरी बार जीवनदान मिलता हुआ। अब पूरी तरीके से प्रभु प्रकाश के हो चुके हैं। हे प्रभु, थोड़े पाटीदार थाना के भी होइए। ये क्या हुआ? बच्चे भी चिल्ला रहे हैं पीछे से। मैं उसको बता दूं, प्रकाश भाई का दूसरी बार कैच छूटा। इस बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद भिवंडी बॉयज का स्कोर है 11 रन। कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए अनिल भाई।
बढ़िया फील्ड सजाइए। अनिल भाई अपने बॉलिंग मार्क से निकल पड़े। प्रकाश स्ट्राइक पर रहेंगे। ब्लॉक बॉल में रखी हुई गेंद थी, उसको हल्के हाथों से खेल दिया है वहां पर। यहां पर मिस फील्ड होकर गेंद जा रही है। भरत के हाथों ये मिस फील्ड हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इस बीच 2 रन चुरा लिए। इस 2 रन के साथ थाने भिवंडी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा 13 रन। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर। इस बीच मैदान पर प्रकाश सामना करेंगे अनिल की गेंद का। पटकी हुई गेंद थी, अपने कॉलर थ्रू में फील्ड किया यहां पर। बढ़िया गेंदबाजी। प्रकाश एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे अनिल की गेंद का। इस बार बाल बाल बचे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ही नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर दिलीप ने पूरा किया। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधी जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर रुकी। अनिल फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामना करेंगे प्रकाश। लेग स्टंप पर गेंद दी उसको। ये तीसरा जीवनदान मिलता हुआ आज के दिन का प्रकाश भाई को। गेंद स्टंप पर लगी लेकिन बेल्स नहीं गिरे। अब तो मैं कहूंगा प्रभु भी उसके हो चुके हैं और गेंद भी उसकी हो चुकी है, लेकिन जलवा नहीं दिखा पा रहे हैं प्रकाश। बल्ला खामोश रहा है अब तक पूरी तरीके से। फिर से एक बार साथ दिया और गेंद जा रही है कमेंट्री बॉक्स के नीचे आती हुई कारपेट के जरिए। ये लगता हुआ पाटीदार चौका। जैसे तैसे रन आने चाहिए। बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल में रखी हुई गेंद और बढ़िया सम्मान दिया प्रकाश ने इस गेंद पर। 2 ओवर गोटे के पूरे कर लिए यहां पर अनिल भाई ने। इस बीच 3 ओवर की समाप्ति के बाद भिवंडी बॉयज का स्कोर है 17 रन। अब गेंदबाज कोटे का दूसरा और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए हैं दिलीप। दिलीप सामना करेंगे नीरव। बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है वहां पर। लॉन्ग ऑन पर फील्डर रौनक मौजूद है। रौनक जब तक फील्ड करते तब तक दूसरा रन भी लेना चाहते थे, लेकिन हल्की सी दोनों ही बल्लेबाज के बीच तालमेल में गड़बड़ी, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अनिल ने अपने कोटे के 2 ओवर में 14 रन खर्च किए मात्र। बढ़िया गेंदबाजी की अनिल ने। अब काम दिलीप को करना होगा। कवर रीजन में खेल दिया, वहां पर फील्डर की लंबी दौड़ है, देखना बाकी गेंद को रोक पाते या नहीं। बढ़िया फील्डिंग का नजारा वहां पर देखने को मिलता हुआ, लेकिन निश्चित तौर से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे भिवंडी बॉयज को, बल्लेबाजों को। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन, 20 लॉस ऑफ 0 विकेट। दिलीप सामना करेंगे प्रकाश।
फिर से उड़ाया है गेंद के नीचे दिलीप आते हुए। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे और विकेट लेते हुए अब आ चुके हैं, मेरे ख्याल से मेरा भाई है। भाई हो तो हाथ ऊपर करे बल्ला। हाँ, सागर भावाणी। जब जब टीम को जरूरत पड़ी है तब तक भावाणी चमके हैं। इस बार देखना बाकी। हल्के हाथों से खेला, पहले ही गेंद पर खाता गोला सागर ने। इस बीच एक रन के साथ भिवंडी का स्कोर पहुंचा 21 रन। आने वाली 26 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता। दिलीप अपने बॉलिंग माप का सामना करेंगे नीरव। लॉन्ग ऑन रीजन पे खेल दिया, वहां पर भरत मौजूद है, हल्के से हड़बड़ा रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर ग्राउंड थोड़ा ऊपर नीचे है। अब आ चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर सागर। दिलीप सामना करेंगे सागर। उठा के खेला है, गेंद जा रही है, वहां पर रौनक मौजूद है लेकिन कोई गलती नहीं करेंगे। इस बीच दूसरी विकेट का पतन होता हुआ भिवंडी बॉयज का। इस बीच भिवंडी का स्कोर जा पहुंचा 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 24 गेंदों पर जीतने के लिए 59 रन बनाने पड़ेंगे अगर इस फाइनल मैच जीतना है भिवंडी को। तो नए गेंदबाज अगर महेश हो तो अपना हाथ ऊपर करे। धन्यवाद महेश, लेफ्ट हैंड फास्टर बॉलर। महेश निकल पड़े, सामना करेंगे नीरव। फुलटॉस बना करके लो और फुलटॉस थी, वहां पर तेजस के पास आ रही है गेंद। तेजस फील्ड करते तब तक
महेश केसरानी कट कर दिया है वहां पर इंद्रवर्धन ने। वहां पर रितेश की लंबी दौड़, हालांकि गेंद को तो रोक लिया लेकिन खुद को रोका 200 मीटर के बाद। इस बीच सलामी बल्लेबाज है भिवंडी के नीरव। हालांकि बल्ला जरूर खामोश रहा है नीरव का, लेकिन एक छोड़ संभाल कर रखा है। देखना बाकी मैच की इस गेंद पर क्या कर सकते हैं। उठा के मारना चाहते थे लेकिन गेंद हल्की सी टप्पा खाने के बाद बाहर निकली। नो बॉल मेरे ख्याल से। अंपायर नो बॉल, यस ये नो बॉल रहेगी, यानी कि ये एक अतिरिक्त रन भी और एक आने वाली गेंद के लिए तोहफा भी मिलेगा यहाँ पर नीरव को। इस तोहफे को कबूल करते हैं या नहीं वो तो आने वाला टाइम बताएंगे। और गेंदबाज महेश केसरानी क्या कर सकते हैं इस फ्री हिट पर। उठा के मारा है कवर रीजन में, वहां पर फील्डर मौजूद है। फील्डर आकर फील्ड करते तब तक एक रन चुरा लिया। दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े आसानी के साथ। 2 रन चुराने में कामयाब रहे। इस बीच इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा भिवंडी बॉयज का 27 रन। 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर। इस बीच निकल पड़े कॉमेंट्री एंड से। बढ़िया गेंद थी, नीरव को समझ में ही नहीं आया। गेंद टप्पा खाने के बाद बैट का सॉरी अंपायर का इशारा लेग बाय। अब स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं भिवंडी बॉयज के कप्तान पेंट गब्बर यानी कि इंद्रवर्धन। महेश केसरानी निकल पड़े, सामना करेंगे इंद्रवर्धन। शॉर्ट ऑफ लाइन थी, वहां पर निश्चित रूप से गेंद चलेगी 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। ये लगता हुआ पाटीदार चौका। चौको इस चौके के साथ भिवंडी बॉयज का स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 32 रन। कप्तान ने अपना काम बखूबी निभाया है, लेकिन ऐसा आगे भी करना पड़ेगा अगर टीम को जीताना है तो। फिर से एक बार कवर रीजन में खेल दिया। वहां पर फील्डर की लंबी दौड़ है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। गेंद गई इस बीच सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए ये लगता हुआ बैक टू बैक पाटीदार चौका। चौक स्कोर 36 रन, यानी कि आने वाली 18 गेंदों पर 45 रनों की आवश्यकता। इस बीच मेरे ख्याल से ये बैटिंग पावर प्ले लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। नए गेंदबाज मेरे ख्याल से नीरज सेठिया।
हालांकि पहला चौका मारा तभी मैंने कहा था कि अगर मैच को जीतना है तो कप्तान को ऐसे ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और मेरा कहना उसने सुन लिया और गेंद को कवर रीजन में चौका जड़ दिया। बैक टू बैक 2 चौके मारकर अब नॉन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं इंद्रवर्धन। अब स्ट्राइक के ऊपर है सलामी बल्लेबाज नीरव। नीरव देखना बाकी क्या कर सकते हैं अपने टीम के लिए। हालांकि बल्ला अब तक नीरव का खामोश है। इस बीच सेठिया बंधु निकल चुके हैं। वहां पे अनिल भाई के पास गेंद गई, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। थर्टी 37 रन बन चुके हैं भिवंडी बॉयज के। आने वाली 17 गेंदों पर 44 रनों की आवश्यकता। फिर से लॉन्ग पर लंबी दौड़ नहीं रोक पाएंगे। लगातार तीसरा चौका इंद्रवर्धन से बल्ले से निकलता हुआ एक और पाटीदार चौका। चौको खेलते हुए इंद्रवर्धन 3 गेंद पर लगातार 3 चौके, हैट्रिक चौके मारकर खेल रहे हैं इंद्रवर्धन। इस बीच 4 कदम स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। फिर से वही दिशा में धकेल दिया। वहां पर फील्डर है मौजूद, बढ़िया वहां पर जंप लगाकर गेंद को रोका। निश्चितों से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए तेजस सेठिया ने। इसे 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 42। आने वाली 15 गेंदों पर जीतने के लिए 39 रन की आवश्यकता भिवंडी बॉयज को। नीरज निकल पड़े कॉमेंट्री एंड से। बढ़िया गेंद थी, बैट का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद वहीं पर रुक गई। हालांकि नीरव अब तक खामोश है, लेकिन सलामी बल्लेबाज है तो दरखम रखते हैं बड़े लंबे हिट लगाने का। कारपेट के जरिए खेल दिया। वहां पर फील्डर अनिल मौजूद है। हल्की सी मिस फील्ड हुई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं बल्लेबाजों के ऊपर। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस बीच 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। छठी ओवर का खेल प्रगति पर है। इंद्रवर्धन उठा के मारा है, निश्चितों से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। ये लगा छको। क्रिक हीरोज में जो देख रहे हैं प्रेक्षक, उसको बता दूं कि महेश का यहाँ पर टीम में नाम रजिस्टर नहीं है, तो उसकी जगह वंश को ऐड किया है
वंश दीवानी करके जो गेंदबाज दिख रहा है क्रिक हीरोज में, वो महेश केसरानी है। अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए हैं। निकल पड़े नीरव, सामना करेंगे महेश की गेंद का। बैट के नीचे गेंद थी लेकिन सही तरीके से बल्ले के ऊपर आई नहीं। हालांकि नीरव जानते हैं कि बल्ला खामों से तो अब जलवा चल रहा है कप्तान का, तो उसको ही स्ट्राइक पर रख रहे हैं। इंद्रवर्धन कप्तानी पारी खेलते हुए 6 गेंद पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल। फिर से एक बार महेश सामना करेंगे इंद्रवर्धन। फिर से एक बार उठा के मारना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर एक रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि अब एक एक रन से थाने के गेंदबाज खुश रहेंगे। अगर मैच को जीतना है तो लंबे करारे प्रहार करने पड़ेंगे। इस बीच नीरव का बल्ला बोला लेकिन सीधा जाकर गेंद गई अनिल भाई के हाथों और एक विकेट का पतन होता हुआ। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक सामना करेंगे महेश की गेंद का पहली बार फाइनल में। बढ़िया गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बार अंपायर ने दोनों हाथ हवा में ले रहकर इस गेंद को वाइड करार कर दिया। इस बीच 1 रन के साथ स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 52। कप्तान इंद्रवर्धन कुछ कहते हुए प्रतीक को। इस बीच कमेंट्री एंड से निकल पड़े हैं महेश। उठा के मारा है, गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स की तरफ और निश्चित तौर से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 1 बाउंस चौका। यह लगता हुआ पाटीदार चौका। कहां पर छुपा कर रखा था इस बल्लेबाज को, पहले भेजना चाहिए था। पहले ही गेंद खेलते हुए चौका जड़ दिया है। दूसरा गेंद सही तरीके से बल्ले पर आई नहीं लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस साथ 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ भिवंडी बॉयज का 57। 7 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता। महेश केसरानी गेंदबाज निकल चुके हैं कमेंट्री एंड से। ना खुश रहेंगे वहां पर कप्तान इंद्रवर्धन।
इस गेंद पर बढ़िया प्रहार करना चाहते थे लेकिन चूके। अब ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है भिवंडी बॉयज का 58। आने वाली 6 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतना है तो, यानी कि 4 लंबे डडर। आखिरी ओवर लेकर आए हैं नीरज सेठिया। 6 गेंद पर जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता और कप्तान इंद्रवर्धन स्ट्राइक के ऊपर। सिर्फ 4 सिक्सर चाहिए। कहना आसान है 4 सिक्सर, लेकिन इस बीच इंद्रवर्धन पहली गेंद उठा के मारा है। विकेट कीपर इस गेंद के नीचे कोई गलती नहीं करेंगे इस बार। और एक और बड़ी मछली यहां पर बाज वैभव दिवाणी। आने वाली 5 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता। बढ़िया गेंद थी, उसको मिडॉन पर धकेल दिया है। वहां पर फील्डर भरत फील्ड करते तब तक 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। इस बीच आने वाली 4 गेंदों पर जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता, यानी कि हर एक गेंद पर सिक्सर लगना जरूरी। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं धुआंधार बल्लेबाज प्रतीक। इस गेंद के ऊपर समझ में आ जाएगा कि ये मैच किस तरफ रुख करेगा। बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक कॉल में रखी हुई थी। वाइटर यॉर्कर गेंद थी। निश्चित तौर से ये एक और डॉट गेंद, और यहां से थाना का पल्लड़ा भारी होता हुआ इस पीपीएल सीजन 1 में रेशियो बढ़कर 90-10 का हो गया है। 3 गेंदें बाकी, जीतने के लिए 22 रनों की आवश्यकता। हल्के से अपने रनअप पर भटके नीरज। नीरज अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे प्रतीक। फुल टॉस गेंद थी, उसको उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ।
बाकी का काम विकेट कीपर ने नहीं, लेकिन वहां पर रितेश ने पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 60 रन। दो गेंद पर 21 रनों की आवश्यकता, यानी कि लगभग नामुमकिन। गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स की तरफ, ये लगता हुआ पाटीदार चौका चौको। इस फाइनल मैच की आखिरी गेंद निकल पड़े हैं यहां से। नीरज सामना करेंगे, वैभव उठा के मारा है, गेंद ऊंची गई है, नीचे फील्डर मौजूद है, लेकिन कैच छूटा है। लेकिन मैच जीता है यहां पर थाने पाटीदार ने। बजाओ डीजे।